Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel, The World of Plants by Miss Sabine Zahoor. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabine Zahoor, plant pathologist. In our today's lecture, we are discussing the chapter number 8, Kingdom Fungi of the first year biology. And our today's topic is the economic importance of the fungi. Previously, we were discussed about the fungi, characteristics of the fungi, and the nutrition in the fungi. In our today's lecture, we are going to study the economic importance of the fungi, which is very important because some fungi are the beneficial and some fungi are the harmful. So here are the some important questions which we have to find out the answer of these question. हमें इनके आंसर फाइंड आउट करेंगे आज के लेक्चर से. So you have to watch the complete video to find out the answer of these important questions. And the questions are: what are the fungi? How fungi can take their nutrition? Fungi are the beneficial or the not? Fungi are edible or the not? What are the benefits of the fungi? What are the disadvantages of the fungi? Why fungi are called the decomposers of an ecosystem? So these are very important questions because हम fungi को decomposers भी कहते हैं, fungi के benefits भी हैं, fungi के disadvantages भी हैं, fungi को edible भी कहते हैं, fungi को हम poisonous भी कहते हैं. So these are very important questions. By our today's lecture, we have to find out the answer of these important questions. Is that clear? Now we are starting our today's lecture. First of all, we have to discuss what is the fungi. Fungi क्या होता है? Fungus होता क्या है? So fungi are the unicellular to the multicellular living organism. They are thallophytes. थैलोफाइट्स मीन्स इनकी बॉडी कैसे होती है? दे आर थैलॉइड. थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. मीन्स इसकी बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. ये कैसा होता है? अ स्मॉल पीस ऑफ द कारपेट, जस्ट लाइक द वेट पीस ऑफ द कारपेट. बिल्कुल थिक और बिल्कुल सॉफ्ट सा एक स्ट्रक्चर होता है. दे मे बी द माइसीलियम लाइक, द हाइफी लाइक, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. सो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं थैलोफाइट्स. Fungi are the heterotrophic, means they are not able to prepare their own food material. When they are not able to prepare their own food material, so they have to take their nutrition from the other living organisms. So we can say that fungi are the achlorophyllous and fungi are the non-vascular. They don't have any vascular tissue. How many types of the vascular tissues? What are the vascular tissues? So vascular tissues are the xylem and the phloem. These are the vascular tissues. ठीक है. दो तरह के होते हैं, xylem and the phloem. ये fungi में absent होते हैं. ठीक है. सो हम क्या कहते हैं? fungi are the non-vascular. They are the eukaryotic, means having the complete cell. इसके पास न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल सब मौजूद होते हैं. They are the living organism having a body like the mycelium. ठीक है. इसकी बॉडी कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल कैसे होता है? फ्रेगमेंट्स होते हैं और समटाइम बिल्कुल बारीक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो वो क्या कहलाता है? वो माइसीलियम कहलाता है. एंड दिस माइसीलियम इज मेड अप ऑफ द हाइफी. बहुत सारे हाइफी से मिलकर माइसीलियम बनता है. इज दैट क्लियर? विच आर द नॉन क्लोरोफिलस. ये हाइफी कैसा होता है? नॉन क्लोरोफिलस होता है. इस हाइफी में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता. इसी वजह से तो हम कहते हैं फंजाई आर दी एक्लोरोफिलस. दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल. व्हेन दे डोंट हैव क्लोरोफिल, सो हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल? सो वी कैन से दैट फंजाई आर दी heterotrophic. And in the fungi, reproduction is usually asexual by means of the spores. The organisms in the kingdom fungi include the mushroom, yeast, mold, rust, smut, puffball, truffles, morels, and the molds. Is that clear? Now we have to discuss the nutrition in the fungi. So nutrition fungi कैसे लेते हैं? By the process of the absorption. सो फंजाई पहले तो हम कहते हैं कि भाई ये हीटोट्रॉफ्स हैं. हीटोट्रॉफ्स ने अपने फूड मटेरियल नहीं तैयार कर सकते और इनकी बॉडी कैसी? हाइफी और माइसीलियम लाइक है. सो ये अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन. इज दैट क्लियर? All fungi lack of the chlorophyll and are heterotrophs.
obtained carbon and energy from the organic matter. They obtained their food by the direct absorption from the immediate environment. ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं? एब्जॉर्प्टिव हीटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? सो देयर आर द थ्री मेथड्स, थ्री modes of the heterotrophic nutrition. First one is the saprotrophs, means fungi take their nutrition from the dead organic matter. Second one is the parasites, means fungi can take their nutrition by the living host. And third one is the mutualistic, means fungi they can take their nutrition by the sharing of the host. Sharing करेंगे host के साथ, host को भी provide करेंगे, उनको भी बेनिफिट देंगे और ख़ुद भी बेनिफिट लेंगे. इज़ दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ द फंजाई विच इज़ आर टूडेज टॉपिक. इज़ दैट क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ द फंजाई. फंजाई की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ द फंजाई. फंजाई प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक फील्ड. दे शो द बोथ हार्मफुल एंड द यूजफुल एक्टिविटीज़ टू द ह्यूमन बींग्स. ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. सो मीन्स अगर हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ द फंजाई बात करेंगे तो हम यूजफुल इफेक्ट्स भी बात करेंगे और बेनिफिट्स ऑफ द फंजाई को डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजफुल फंजाई. सो यूजफुल फंजाई में उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं. फॉलोइंग आर दी सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ द फंजाई. फंजाई से हम फूड लेते हैं, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. फंजाई फूड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, फर्मेंटेशन का काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं और एज अ बायो इंडिकेटर एयर पोल्यूशन को भी कम करने में हेल्प आउट करते हैं. इज दैट क्लियर? सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ठीक है जी. सो यूजफुल फंजाई में सबसे पहले आता है फूड. मैनी काइंड ऑफ द ईडेबल फंजाई आर इन द फॉर्म ऑफ द मशरूम्स आर द सोर्स ऑफ द नरिशिंग एंड द डिलीशियस फूड डिशेस. हम फंजाई के बहुत सारे मेंबर जैसे मशरूम को हम डिलीशियस और दी प्रोटीनेशियस डिशेस के तौर पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें नरिशमेंट होती है. बट नॉट ऑल द मशरूम्स आर एडिबल. तमाम तरह के मशरूम्स एडिबल नहीं होते. सम ऑफ देम आर द पॉइजनस and called stools and the death stools. Is that clear? Some fungi are used in the food production. So हम डिस्कस करते हैं फूड प्रोडक्शन में फंजाई कैसे रोल प्ले करते हैं. Many kind of the yeast are used in the production of the bakery and the brewery products. Bakery means जो बेकरी के आइटम्स होते हैं लाइक द केक, बिस्किट्स, इनको बनाने के लिए भी यीस्ट को हम यूज़ करते हैं. और सम ब्रेवरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो वाइन्स और जो बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह की प्रिपरेशन में भी यीस्ट हेल्प आउट करता है. सम स्पीशीज ऑफ द जीनस पेनिसिलियम गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लेवर एंड द अरोमा फॉर द चीज़. पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि चीज़ का फ्लेवर आता है जिसमें से, ठीक है, चीज़ का फ्लेवर कौन देता है? पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि फ्लेवर और खुशबू देती हैं, एरोमा देती हैं. एरोमा मीन्स खुशबू देती हैं. इज दैट क्लियर? एंड सम फंजाई आर यूज इन द मेडिसिन्स. नियरली 24 एंटीबायोटिक्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया लाइक पेनिसिलियम फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटेटम, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन एंड द टेट्रामाइसिन. दीज आर द एंटीबायोटिक. ये एंटीबायोटिक हमें किससे मिलती हैं? फंजाई से मिलती हैं. सो फंजाई मेडिसिन में यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है. एंड द नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट रोल इज द फर्मेंटेशन. सम स्पीशीज ऑफ द एस्परजिलस आर यूज फॉर द फर्मेंटिंग सोया सॉस, सोया पेस्ट. Citric acid is produced commercially with the members of the genus. कौन से जीनस? Aspergillus. Under the highly acidic condition. Aspergillus कैसा होता है? Highly acidic होता है. और ये क्या करता है? सोया सॉस बनाने में, सोया पेस्ट बनाने में. सिट्रिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड आपको पता है ना, जिससे विनेगर वगैरह होता है, उसको बनाने में ये हेल्प आउट करता है. सो फर्मेंटेशन का काम भी फंजाई के कुछ मेंबर्स करते हैं लाइक दी एस्परजिलस. फंजाई के कुछ मेंबर सॉइल फर्टिलिटी भी करते हैं.
ठीक है, यानी सॉइल फर्टिलाइजेशन का काम भी करते हैं। फंजाई मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी बाय द डीकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल द माइकोराइजल फंजाई। माइकोराइजल फंजाई का क्या काम होता है? माइकोराइजल फंजाई बेसिकली प्लांट्स की रूट्स में होते हैं और ये सॉइल के साथ प्लांट्स की अटैचमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सो ये सॉइल की फर्टिलिटी भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। सॉइल का जो इंटरनल टेक्सचर होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल मज़ीद फर्टाइल हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ में इंक्रीज हो जाता है। Production of the organic compounds. Many species of the fungi are used in the production of the organic compounds such as the vitamins, proteins and fats. Saccharomyces synthesize a range of the vitamin B groups. जो Saccharomyces procera जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और Saccharomyces का क्या काम होता है? Saccharomyces का काम होता है कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के विटामिन बी ग्रुप को ये सिंथेसाइज करने में मदद देती है। Is that clear? Some fungi are also playing the very important ecological function. Ecology में भी important एक रोल अदा करते हैं, ठीक है। सो इट्स मीन के बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। Many fungus which are making an association with the algae form the lichen. So these lichen from the ecological point of view are very important because they serve as the bio indicator of the air pollution. ये एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं और बायो इंडिकेटर की तरह हेल्प करते हैं, मीन्स हमारे इकोसिस्टम को साफ कर देते हैं। कैसे साफ करते हैं? बिकॉज लाइकन बेसिकली क्या होते हैं, फंगस में एस्कोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अल्जी के साथ मिलकर एक एसोसिएशन बना देते हैं जो कि लाइकन कहलाती है। और इस लाइकन में क्या होता है, अल्जी अपने फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जब फोटोसिंथेसिस का काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स एयर पॉल्यूशन कम करता है, और रिलीज आउट करता है ऑक्सीजन। सो मीन्स एज अ बायो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करता है और हमारी एयर को क्या करता है, क्लीन कर देता है। सो इस वजह से हम फंगस के लिए ये भी कहते हैं कि सम मेंबर ऑफ द फंजाई लाइक द लाइकन्स विच मेक एन एसोसिएशन विद द एल्जी आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोसिस्टम। इज़ दैट क्लियर? और ऐसे ही माइकोराइजा भी जो होते हैं वो भी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं बिकॉज ये सिम्बियोटिक पार्टनर्स होते हैं। ये बनाते हैं एक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स। और मोर देन 95% ऑफ द प्लांट्स आर सिम्बियोन्स ऑफ द माइकोराइजी। 95% प्लांट्स क्या करते हैं, सिम्बियोन्स होते हैं माइकोराइजी के साथ, क्योंकि ये प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो उस वक्त तक ज़मीन के अंदर अटैचमेंट नहीं बना सकती जब तक वहाँ पे फंगस अपने अच्छे से फंक्शन परफॉर्म ना करे। कुछ फंजाई जो कि वेम फंजाई भी कहलाते हैं, ठीक है, यानी वेसिकुलर और आर्बस्कुलर फंजाई होते हैं, वेम फंजाई कहते हैं हम उनको। वो क्या करते हैं, माइकोराइजल फंजाई जो कि प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर भी रहते हैं और सॉइल के साथ प्लांट्स की अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। These are the very important role of the fungi. These all are the beneficial role of the fungi. So students, these are the useful fungi which are playing a very important role in our ecosystem and for the living beings. राइट, लिविंग बींग्स के लिए भी वो अपना एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द हार्मफुल फंजाई। फॉलोइंग आर द सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फंजाई। फॉर एग्जाम्पल, फंजाई फूड स्पॉइलेज करते हैं, फंजाई स्पॉइलेज ऑफ द वुड एंड लेदर करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, और एक नहीं मल्टीपल डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है जी। सो हम डिस्कस करते हैं हार्मफुल फंजाई को। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फूड स्पॉइलेज। Saprophytic fungi cause the tremendous amount of the spoilage of the food stuffs. 15 to the 20% of the world's food is lost each year due to the fungal attack. क्योंकि फंगस का काम क्या होता है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर अटैक करता है और फूड को स्पॉइल कर देता है। ऐसे ही अक्सर जब हाई टेम्परेचर होता है, सो हाई टेम्परेचर में फंगस की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से हमारे अक्सर जो हमारे खाने होते हैं, हमारी डिशेस होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मींस फूड हमारा स्पॉइल्ड हो जाता है। ठीक है जी।
So next is spoilage of wood and leather articles. Many of the fungi spoil the leather goods, woods, wool, books, timber, cotton, etc. Wood rotting fungi destroy not only the living trees but they also structural timber. ये लकड़ी के जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Bracket shelf fungi cause lot of the damage to store cut lumber as well as stands of the timber of the living trees. ठीक है, लिविंग ट्रीज में भी ये डैमेज कॉज करते हैं और ये वुड को भी डैमेज कॉज करते हैं. इज दैट क्लियर? और ये लेदर के ऊपर भी डैमेज कॉज करते हैं क्योंकि लेदर क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है. ठीक है, लेदर किससे बनी होती है? एनिमल स्किन से बने होता है लेदर. सो लेदर के जो आर्टिकल्स होते हैं उस पर भी अगर थोड़ा सा भी वो वेट हो जाए तो फंगल स्पोर आके वहाँ पे अपना हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, माइसिलियम बनाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं. इस तरीके से लेदर गुड्स भी ख़राब हो जाती हैं. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट है टॉक्सिन्स. बहुत सारे फंजाई टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं. इज दैट क्लियर? मैनी फंजाई आर द पॉइजनस. Many of the fungi are the poisonous. Amanita varna is the mushroom which produce deadly poisonous substance known as the amitin, which causes serious problem in the respiratory system and the blood circulatory system. Many of the fungi food poisoning भी करते हैं. So some fungi during the decomposition food release certain poisonous substances collectively known as the mycotoxin. Myco means the fungi and toxin means the पॉइजन सब्सटेंसेस. सो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि ऐसे पॉइजन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करते हैं. तो क्या कहलाते हैं? वो माइकोटॉक्सिन कहलाते हैं. माइकोटॉक्सिन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग. जो फूड पॉइजनिंग होती है उसकी जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है? माइकोटॉक्सिन्स है. इज दैट क्लियर? डिजीज़. सो अब हम डिस्कस करते हैं फंगल डिजीज़ को. सो फंगल से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी हैं? फंगल आर कॉजेज द डिजीज इन द प्लांट एज वेल एज इन द एनिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंजाई. Fungi destroy many agricultural crops, fruits, ornamentals, and other kinds of the plants. Now we have to discuss the plant diseases caused by the fungi. Fungi destroy many agricultural crops, fruit, ornamental, and the other kinds of the plants because they produce the several enzymes that can break down the cellulose, lignin, and even cutin. Following are the some of the serious plant diseases caused by the fungi. अब हम डिस्कस करते हैं फंजाई की वजह से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द रस्ट एंड स्मट डिजीज. Rust and smut disease are the serious disease of the wheat, rice, corn and other cereal crops. The causes extensive damage. यानी पोइसी के मेंबर जो होते हैं, फैमिली पोइसी के मेंबर, उनको फंजाई डैमेज कॉज करते हैं. और क्या कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज द पोटैटो ब्लाइट. This disease of the potato caused by the fungus known as the Phytophthora infestans. आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा था Phytophthora infestans is able to cause the disease in the potato. And नाम क्या है डिजीज का? Late blight of potato. Is that clear? Other plant diseases, for example, powdery mildews, agate of rye, red rot of the sugarcane, cotton root rot disease, apple scabe, brown rot of the peaches, plums, apricots and the cherries. These all are the plant diseases which are caused by the fungi. फंजाई प्लांट्स में ये तमाम तर डिजीजेस कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं और इकोनॉमिकली प्लांट्स को, एग्रीकल्चर फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं. सो इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. किसके लिए? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए. अंडरस्टूड? Now we have to discuss the animal diseases caused by the fungi. Following are the some of the fungal diseases in the main. Skin disease. ठीक है, स्किन की डिजीज जितनी भी होती हैं अबाउट 60% स्किन डिजीज फंगल डिजीज होती हैं. रिंगवर्म, एथलीट्स फुट और द सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन caused by the certain fungi imperfecti
आपको याद होगा डिट्रोमाइकोटा के मेंबर फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाते हैं और वो क्या होते हैं, वो डिट्रोमाइसिटीज होते हैं। डिट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर्स क्या करते हैं, हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ पे भी उनको हल्की सी भी नमी मिलती है या न्यूट्रिशन फाइंड आउट करते हैं वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही वो स्किन के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, स्किन से अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं, अपने हाइफी को इन्वाइट कर देते हैं, माइसिलियम प्रोड्यूस करते हैं और एक फंगस को वहाँ पे ग्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन डैमेज होता है और स्किन डिजीज़ हो जाती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओरल थ्रश। कैनिडिया अल्बिकेंस अ यीस्ट कॉज ओरल एंड द वेजाइनल थ्रश। ठीक है, ओरल और वेजाइनल थ्रश भी फंगस की वजह से होता है। एस्परजिलोसिस Aspergillosis is the disease of ear lungs caused by the aspergillus. Aspergillus की वजह से कान में और जो लंग्स होते हैं उसमें डिजीज हो जाती है। It occur only in the person with the defective immune system such as the AIDS or the cause of that. ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उसको एस्परजिलोसिस हो जाती है। एस्परजिलोसिस में होता क्या है कि जिनकी वीक इम्यून सिस्टम होता है, वीक इम्यूनिटी होती है, उनकी बॉडी में एयर और लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं। Is that clear? Now some fungi are able to cause a disease which is very dangerous, that is the cancer. Some strains of the Aspergillus flavus produce one of the most carcinogenic causing cancer. और कैंसर का जो माइकोटॉक्सिन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एफ्लाटॉक्सिन। आप लोगों ने याद रखना है, एफ्लाटॉक्सिन इज द माइकोटॉक्सिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द कैंसर इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैंसर कॉजिंग की जो एबिलिटी रखता है वो एक माइकोटॉक्सिन होता है। उस माइकोटॉक्सिन का क्या नाम है, एफ्लाटॉक्सिन। अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछते हैं भाई व्हाट इज़ एफ्लाटॉक्सिन्स। सो एफ्लाटॉक्सिन का आपको पता होना चाहिए। एफ्लाटॉक्सिन फंजाई से रिलीज होने वाला एक टॉक्सिन यानी केमिकल सब्सटेंस है जो कि वेरी पॉइजनस होता है और कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता है। Ergotism is caused by the eating bread made from the pool agate. Contaminated flour means खराब आटे की वजह से जो डिजीज होती है that is called the ergotism. The poisonous material in the agate cause the nervous system convulsions, psychotic delusions and even gangrene. राइट, सो एर्गोटिज्म यानी ख़राब आटे की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कॉजेज नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये डिजीज़ क्या कहलाती हैं, ये एर्गोटिज्म कहलाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज़ द लंग्स डिजीज़। It is very serious disease of the lungs caused by the inhaling spores of the fungi. अगर जैसे ड्यूटोमाइसिटीज़ के बहुत सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और इनके स्पोर्स हवा में लिबरेट हो जाते हैं और लिबरेशन के बाद ये क्या करते हैं, अगर इनको इनहेल कर लिया जाए सो ये लंग में चले जाते हैं और लंग में जाकर कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ का नाम है हिस्टोप्लाज्मोसिस विच इज़ कॉमन इन द सॉइल कंटेमिनेटेड विद द बर्ड्स फीसिस। ठीक है, ये जो इसके जो स्पोर्स होते हैं ये बर्ड फीसिस के थ्रू हवा में कंटेमिनेशन कर जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ का नाम क्या होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस होते हैं अगर ये स्पोर्स इनहेल कर लिए जाएं। इज़ दैट क्लियर? सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ द फंजाई। हमने फंजाई के कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस किया जिसमें फंजाई कुछ एडिबल भी हैं, एंटीबायोटिक के तौर पर भी यूज़ हो रही हैं, फूड मटेरियल के तौर पर भी यूज़ हो रही हैं, बेकरी में भी यूज़ हो रही हैं, एम्ब्रॉयडिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रही हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ कर रही हैं और हमारे लिए एज अ बायो इंडिकेटर यानी एयर पॉल्यूशन को भी कम कर रही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे फंजाई बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट फॉर्म करते हैं, बहुत सारे उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ये फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारे फूड मटेरियल को स्पॉइल कर देते हैं, साथ साथ हमारे लेदर को वुड्स को स्पॉइल कर देते हैं, एनिमल और प्लांट्स पर डिजीज़ कॉज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. Today's lecture is very important because
फंजाई आर प्रेजेंट इन आर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, सो हमें उससे प्रिवेंशन भी करनी चाहिए. सो मे अल्लाह कीप आवर सेल्फ सेव, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको सेव रखे और हर बीमारी से महफूज रखे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू मस्ट हैव टू आस्क फॉर मी. I will definitely give you the answer of your each and every question. If you have any question, so you must have to write in the comment box, in the chat box. So definitely I will give you the answer. If today's lecture is informative and beneficial for your academic growth, so please like, comment on videos, subscribe my channel The World of Plants by Sabeen Zahoor, and also press the bell icon for the notification of the more informative videos. Keep watching, keep learning. I shall be back with another conceptual lecture and the topic very soon. Till then, watch, like, comment and share videos. Thanks for watching to all the subscribers to join my channel The World of Plants by Sabeen Zahoor. Don't forget to like, subscribe, write in the comment box to telling what you like or what you want to like to make the videos on that topic. Till then, take care. Have a wonderful day. Allah Hafiz.